The range of function is very vast. It is the backbone of mathematics. Without function, you cannot achieve any goal of mathematics. Today, I have been going to discuss about the introduction of function. Function or method. Function is also called method. Its other name is method. First of all, we have been studying about the concept of function. I have taken two non-empty sets, A and B. A has some elements and which are A, B, C, and B has also some elements 1, 2, 3, 4, 5. I have taken two sets A and B. These are non-empty sets. Suppose that f be any rule according to this rule, every element of set A is associated with unique element of set B. As for example, A is associated with 1, B is associated with 2, and C is associated with 3. Here is an unknown rule, that is F. According to this rule, every element of set A is associated with unique element of set B. I have taken A is associated with 1, B is associated with 2, and C is associated with 3. And its rule be F. Then this rule F is called function from A to B. Clear? What do you mean by function? Then we can say function is a rule. According to this rule, every element of set A is associated with unique element of set B. It is denoted by F such that A tends to B, or Y is equal to Fx, where X belongs to set A and Y belongs to set B. स्टूडेंट्स, इसमें हमें यह देखना है, इसमें मुख्य बात, मेन पॉइंट्स इसमें दो पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with unique element of set B. सेट A का एवरी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए. और जिस रूल से वो एसोसिएट होगा वही रूल फंक्शन फ्रॉम A to B कहलाता है.
If you want to define it, then you can write if every element of if A and B are two non-empty sets such that every element of set A is associated with unique element of set B according to a definite rule of, then F is called function from A to B. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है फंक्शन का रेंज बहुत ही वास्ट होता है। विदाउट फंक्शन मैथमेटिक्स में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन यदि ब्रेक करना है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, एनी कंपटीशन, then we can get the concept of फंक्शन क्लियर। लेकिन मुख्य बात यह है, यह बात समझ लेना है कि फंक्शन का कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इजी करके, कन्वीनियंट करके यदि समझ जाओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक फंक्शन बहुत ही कंसेप्चुअल चलता है। तो यहाँ हम लोगों को यह देखना था सिर्फ फंक्शन के बारे में कि फंक्शन एक रूल हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट रूल every element of set A is associated with unique element of set B। यहाँ दो बातें हैं। every element, here is every element of set A is associated with unique element of set B। every and unique, two टर्म्स को माइंड में एकदम अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लेना है कि every element of set A and unique element of set B। unique, what do you mean by unique? जानते होंगे आप, unique one, only one, one and only one। unique एलिमेंट ऑफ सेट B के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। और यहां पे लिख सकते हो कि इट इज डिनोटेड बाय, फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं f such that A tends to B, और इसी को कर सकते हो y is equal to fx, where x belongs to set A and y belongs to set B। इसका एग्जांपल यदि हम लोग ले लें, इसको नोट करा है ना आप लोग, है ना, अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको, इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है कि every element of set A is associated with unique element of set B, where and it is also denoted by y is equal to fx, where x belongs to A and y belongs to set B। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट A is equal to 1 2 3,
equal to 1, 4, 9, 16 and 20. I have taken two sets A and B, two nonempty sets A and B, and here I have taken f(x) is equal to x square. That is, the representation of function is also fx, y is equal to fx. So we can take here y for x and it can be y is equal to x square. इतना क्लियर हुआ कि x सेट A का एलिमेंट है और y सेट B का एलिमेंट है। तो अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमें x के जगह क्या क्या लेना है। तो x के जगह x A का एलिमेंट होना चाहिए। x के जगह हम क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं। When x is equal to 1, therefore here is y is equal to x square, so we can write y is equal to 1 square will be 1. Again, when x is equal to 2, therefore y is equal to 2 square, it means 4. When x is equal to 3, therefore y is equal to 3 square, it means 9. Now there is no any value of x for this set A is equal to 1 by 3. तो अब इतनी बातें जब मैंने लिख दी, इसमें सबसे पहले अब आप यह देखिए, बता सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें फंक्शन कौन है। आप सोच सकते हैं कि फंक्शन कौन है। हमने सेट A लिया, सेट B लिया, f(x) is equal to x square लिया, y is equal to x square ले लिया, इतना x का वैल्यू हमने पुट किया और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y का हमने ऑब्टेन कर लिया। तो अब इसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसमें फंक्शन कौन है। इसका कंसेप्ट लेने की बात है, फंक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन इन दिस एग्जांपल। देन वी कैन से हियर फंक्शन इज f(x) is equal to x square, that is y is equal to x square. This is called function. I have taken here definition as function is a rule. इसको कन्वीनियंट कर लो, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इसको सिंपली एकदम डेली लाइफ का एग्जांपल मैं दूंगा, इसको एकदम सिंपल वे में आप डाल सकते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को सिंपली आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं कि फंक्शन एक रूल हुआ जिस रूल के अंतर्गत सेट A का आखिरी एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, रिलेटेड, एसोसिएटेड। तो यहाँ एक रूल होना चाहिए, फंक्शन इज अ रूल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। तो यहाँ हियर इसमें रूल कौन हुआ, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ f(x) is equal to x square, यदि ये टर्म नहीं रहता तो क्या ये रिलेशन तो नहीं हो पाता। इस x का वैल्यू पुट किए हमने, y का वैल्यू टेकअप कर लिया, तो y का वैल्यू लेने के लिए ऑब्जेक्ट होने के लिए कौन सी किसकी जरूरत पड़ी हमें, f(x) is equal to x square, it means y is equal to x square। तो ये जो रूल हुआ, दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। रूल, function means rule. According to that rule, every element of set A is associated with unique element of set B. तो यहाँ हमने इनपुट डाला x is equal to 1, 2, 3 and यहाँ हम आउटपुट हमने ले लिया y का वैल्यू 1, 4, 9 है ना। According to this rule, according to this rule, I have taken the value, I have got the value of y. We can take here 1 is associated with 1, 2 is associated with 4 and 3 is associated with 9.
it can be also written as in order form f is equal to 1 से एसोसिएटेड है, 2 4 से एसोसिएटेड है और 3 9 से एसोसिएटेड है. It means in order here we can take these elements as this 1 1 2 4 and 3 9. This is also called function in order, है ना, order है ना, order. So I have taken here function. It means it can be also called mapping. In the Venn diagram, and here I have taken an example, and यहाँ हमने इसको क्लियर कर दिया, है ना. ये हमने arrow, according to arrow I have taken, and here I have taken in ordered pair. ये सब फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है. फंक्शन को मुख्य रूप से आपको यह समझना है, फंक्शन को माइंड में आप सेटअप कर लें, सिंपली आप सेटअप कर लें. इसका मैं डेली लाइफ का भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको एकदम इजी हो जाएगा फंक्शन समझने में. फंक्शन यहाँ हम और एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ डेली लाइफ का, तो यहाँ हमने फंक्शन को देखा. फंक्शन को एकदम सिंपल वे में आप डाल लें. फंक्शन पे मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूँ इसलिए कि फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कंसेप्चुअल चैप्टर है. इसका सिर्फ कंसेप्ट आपको लेने की जरूरत है ना. इसके बहुत सारा फंक्शन, हर चीज में फंक्शन इंक्लूड हो जाएगा. अलजेब्रा में भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट में भी आ जाएगा. फंक्शन कहीं भी 2-4 फंक्शंस को एक साथ कंबाइन कर सकता है. इसलिए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हर जगह इसका बहुत बड़ा वास्ट रोल है मैथ्स. तो यहाँ हमने ले लिया. ये फंक्शन को सिंपल में जान जाइए. एक बार और मैं बता देना चाहता हूं कि फंक्शन एक रूल हुआ जिस रूल के तहत सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है. इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, लेकिन इतना यह क्लियर माइंड में कर लें कि फंक्शन एक रूल है. बस इतना माइंड में रखना है कि फंक्शन, व्हाट डू यू मीन फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन. Then we can say function is a rule. According to that rule, every element of set A is associated with unique element of set B. Every set A का every element होना चाहिए और set B का unique element होना चाहिए. Unique means one and only one. As for example, मैं लेता हूं यहाँ फंक्शन के बारे में. फंक्शन को हम डेली लाइफ में ले लें, जस्ट लाइक हम लोग ले लें. यहाँ हमने ले लिया एक मशीन, ले लिया जेरोक्स मशीन हमने ले लिया. डेली लाइफ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. यहाँ हमने जेरोक्स मशीन ले लिया. अब जेरोक्स मशीन ले लिया. जेरोक्स मशीन में हम यहाँ एक पेपर डाला जिसमें कुछ लिखा हुआ है. पेपर डाला, ऊपर से पेपर डाला, मशीन अपना कुछ काम किया और काम करने के बाद हमें यहां से जेरोक्स फोटोस्टेट कॉपी मिलेगा. इसका जेरोक्स कॉपी मिलेगा. इट मींस यहां हमने इनपुट डाला और यहां हम आउटपुट ले लिए. इनपुट डाला और आउटपुट हमने ले लिया. जेरोक्स मशीन में हम एक पेज डाले और वो पेज में कुछ प्रोसेस किया मशीन, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट उसका जेरोक्स कॉपी मिल गया. तो इसमें फंक्शन कौन हुआ? फंक्शन माइंड में सेट कर लीजिए कि फंक्शन एक रूल है. तो ये यदि कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन का काम मशीन कर रहा है. यदि ये मशीन नहीं होता तो हमें जेरोक्स कॉपी नहीं मिलता. जेरोक्स कॉपी मिलने के लिए मिलने का काम किसने किया? मशीन किया. तो एक सिस्टम में मशीन हुआ, एक रूल मशीन हुआ, जो ये मशीन विच मशीन वी हैव, है ना, विच मशीन वी हैव, फ्रॉम विच मशीन वी हैव गॉट आउटपुट. इट मींस जेरोक्स कॉपी ऑफ दैट पेपर, दैट पेज.
P it is a function. मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंक्शन एक रूल हुआ, जस्ट लाइक जेरोक्स मशीन है, जेरोक्स मशीन भी एक फंक्शन हुआ। उसमें हम एक पेज डालते हैं, है ना, जिसपे कुछ लिखा हुआ है और डालने के बाद मशीन वर्क करके हमें आउटपुट दे दिया। जेरोक्स मशीन, जेरोक्स कॉपी, तो फंक्शन का काम किसने किया होता है? मशीन ने किया। जस्ट लाइक सिंपल वे हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं। डेली लाइफ में आप लेंगे आटा चक्की, जिसमें हम लोग गेहूं पीसते हैं, पिसवाते हैं, तो उसमें हम गेहूं डालते हैं और हमें मिल जाता है क्या? आटा मिल जाता है। तो इसमें भी फंक्शन काम कर रहा है। फंक्शन कौन हुआ? जो आटा चक्की हुआ। यदि आटा चक्की नहीं रहता तो हमें आटा नहीं मिलता। हमने इनपुट डाला, आउटपुट ले लिया। तो यहां रूल कौन हुआ? तो आपका रूल आटा चक्की हुआ। आटा चक्की में गेहूं डाले, हम आटा ले लिए। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन एक जस्ट लाइक रूल हुआ, जिस रूल के अंतर्गत हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं। कभी कभी जेरोक्स मशीन में हम लोग फोटो स्टेट कराने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहीं, मशीन का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज फोटो स्टेट नहीं होगा। इट मींस उसका फंक्शन बिगड़ चुका है। तो यहां मशीन क्या काम कर रहा है? फंक्शन का काम मशीन कर रहा है। मशीन आटा चक्की ले ले, आटा चक्की का भी कभी बिगड़ जाता है फंक्शन, तो उसका फंक्शन बिगड़ जाने के बाद गेहूं नहीं पिसाता, मना कर देता है कि नहीं यार फंक्शन इसका खराब है, नहीं ऐसा होगा। तो फंक्शन जस्ट लाइक एक रूल हुआ, मशीन हुआ, जिसमें हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं। इसका एग्जांपल आप यहां भी ले सकते हैं। हमने यहां जस्ट लाइक मशीन का काम कौन कर रहा है? f(x) = x²। इट मींस y = x²। इसमें x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू ले रहे हैं। इट मींस इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं। क्लियर? इसमें हमारे समझ से आप लोगों को कहीं डाउट नहीं होगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन को माइंड में कंप्लीट सेट कर लीजिए, सिंपल वे में, एकदम इजी वे में सेट कर लीजिए कि फंक्शन एक रूल हुआ, मशीन हुआ, जिसमें हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन रूल हुआ। यहां हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है। इस डेफिनेशन के अनुसार ऐसा कर सकते हैं, पहले इसको समझ सकते हैं और ये हमने यहां समझा दिया। ओके, अब यहां मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं कि फंक्शन व्हिच इज फंक्शन और व्हिच इज नॉट फंक्शन। फंक्शन कौन सा है? Some examples which can be function or not function. I have taken here set A and set B. A, B, C, D, 1, 2, 3. A is associated with 1, B is associated with 2, and C is associated with 3. Is it function? No, it is not a function. Not a function. A function नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? इसका रीजन हुआ कि आखिरी एलिमेंट ऑफ सेट A is not associated with यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B. Here D किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, therefore it is not a function. अब अगला एग्जांपल मैं लेता हूं। सेट A, सेट B, A, B, C, 1, 2, 3, 4. A 1 से एसोसिएट हो गया, B 2 से हो गया एंड C 3 से एसोसिएट हो गया। Is it function? Yes, it is a function. अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सेट A, सेट B, A, B, C, 1, 2. A is associated with 1, B is associated with 1, and C is associated with 2. It is also a function. Yes, it is also a function.
यह सेट करना, बस वही बात माइंड में सेट करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ए बी एसोसिएट। यहाँ बच्चे को कुछ कंफ्यूजन होता है कि यहाँ दो एलिमेंट है ना एसोसिएट कर दिया, तो क्या है फंक्शन है एस, इट इज आल्सो ए फंक्शन। डेफिनेशन में हमने लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ए 1 के साथ एसोसिएट कर रहा है यूनिक के साथ, और बी भी 1 के साथ एसोसिएट कर रहा है, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, सेट ए सेट बी, ए बी सी 1 2 3 4, A is associated with 1, A is associated with 2, and B is associated with 3, and C is associated to 4. It is not a function. Not a function. ये क्यों नहीं फंक्शन है? तो यहाँ सेट A का एलिमेंट, वन एलिमेंट एसोसिएटेड विथ 1 and 2 both. इसका एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, therefore it is not a function. फंक्शन यह माइंड में सेट करके ऑलवेज रखना है कि सेट ए का आखिरी एलिमेंट यूनिट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। ये यूनिट के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, इसमें हमने इनपुट 1 डाला, आउटपुट 2 निकल गया, ऐसा नहीं। दो इनपुट का आउटपुट 1 निकल सकता है, जैसे यहाँ इनपुट हमने 2 डाला है ना, 2 इनपुट का 1 आउटपुट निकल सकता है, परंतु एक ही इनपुट का 2 आउटपुट नहीं निकल सकता है, therefore it is not a function। तो बच्चों इतना ही मैं आज मैं एंड कर रहा हूँ। मान ली मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन दिया, इसमें अभी बहुत सारी बातें बतानी है, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सिर्फ हमने बेसिक बात बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन बच्चे माइंड में सेट कर ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक रूल हुआ जिस रूल के अंतर्गत आखिरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस पे हमने ज्यादा फोकस इसलिए दिया कि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है और सिर्फ फंक्शन को माइंड में सेट करने के लिए हमने ज्यादा फोकस दिया, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।